مسلمانوں کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو جہنم کی ڈسکرپشن ہے، ایک تو یہ اتنی سٹرونگ کیوں ہے، اتنی ایکسٹریم کیوں ہے، کیونکہ ہر چیز میں پتہ ہے اللہ کیا بولتا ہے، مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتے. جو انسان معاف کرتا ہے نا، اللہ اس کو بولے گا قیامت والے دن میں تجھے بتاتا ہوں معافی کیا ہوتی ہے میرے بندے. تو فضل کرنے والے میں بتاتا ہوں فضل کیا ہوتا ہے. تو کھال جلانے والا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کھال جلانا کیا ہوتا ہے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. بس بھائی قرآن میں جو جہنم کا ڈسکرپشن ہے، جیسے میں بھی پڑھ رہا تھا، تو بہت ڈیٹیل میں اللہ نے بتایا ہے. اور اس پہ کچھ نان مسلمز یا یہ کہیے کہ جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں وہ یہ سوال بھی کھڑا کرتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہماری کھالیں جلائی جائیں گی اور پھر ہمیں کھال دی جائے گی، پھر جلائی جائے گی، یا ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا. تو اگر آپ کے پاس کوئی یہ سوال لے کے آتا ہے اس طرح سے کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام کو، تو کیا آپ اسے سمجھائیں گے، کیا آنسر ہوگا؟ دیکھو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے تم نے، کیونکہ میں نے بار بار دیکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو جہنم کی ڈسکرپشن ہے، ایک تو یہ اتنی سٹرونگ کیوں ہے، اتنی ایکسٹریم کیوں ہے، اور یہ ایکچولی کن نان مسلمز کو لے کے یا سب نان مسلمز کو لے کے یہ کلیئر نہیں ہے مسلمانوں کو. دیکھو قرآن کا نا ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے. اب سب سے پہلے میں تمہیں کانٹیکسٹ بتاتا ہوں. دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار ایگزامپل، ان کو جلتی تپتی ہوئی ریت پہ باندھ دیا گیا. دلی کی گرمی میں نا تم اگر دھوپ ہے تم ننگے پیر زمین پہ نہیں چل سکتے ہو، فلور پہ چل پاتے ہو ہیں؟ اور سوچو اس ایسی زمین پہ دلی میں ہی جہاں پہ ٹیمپریچر 44 46 47 جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی تمہیں اس زمین پہ باندھ دے، کیا ہوگا تمہاری کھال پگھلنے لگے گی، جلنے لگے گی تمہاری کھال. وہاں ایسی زمین پہ نہیں، 50+ جہاں پہ جاتا ہے تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال کو جیسے باندھ دیا اور اوپر پتھر بھی رکھ دیا ان کے اوپر کہ آدمی اگر یہاں سے جل رہا ہے تو کچھ یوں کر لے، ادھر سے یوں کر لے، ہل ہل کے پتھر بھی ڈال دیا کہ ہل بھی نہ پائے. ایسے کتنے صحابیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کو جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریتوں پہ، جلتی ہوئی ریتوں پہ باندھا جاتا تھا. کون کر رہے تھے یہ؟ ان نان مسلمز کے لیے، ان کفار کے لیے. صرف نان مسلم نہیں بولوں گا کہ نان مسلم اور کافر میں فرق ہے. ہر نان مسلم کافر نہیں ہے. تو میں وہ جو کفار مکہ تھے ان کو بولوں گا کہ ان کے لیے ہے یہ ڈسکرپشن. دیکھو اسلام کا قانون کیا ہے، نجات کا قانون، جو میں نجات کا قانون کہتا ہوں پر ایکچولی اوور آل قانون ہے. معاف کرو گے تو معافی ملے گی، فضل کرو گے تو فضل ملے گا، رحم کرو گے تو رحم ملے گا، دوسروں کی غلطی نظر انداز کرو گے اللہ تمہاری غلطی نظر انداز کرے گا. یہی ہے نا، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. ہم نے اس پہ اپنا ایک ویڈیو بھی بنا رکھا ہے یوٹیوب پہ سیلویشن سیریز میں، ہے نا، کہ نجات کے قانون ہے، اس میں قرآن اور حدیث ہی بتاتی ہے. تو جو دوسروں کی کھالیں جلائے گا اللہ اس کی کھال جلائے گا. اللہ کا ہم انسانوں کو جج کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے. تم دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا، سورہ نور آیت 22. تم دوسروں پہ فضل کرو گے اللہ تمہارے پر فضل کرے گا، سورہ 10 آیت 3، سورہ 11 آیت 3، سورہ 11 آیت 3. ہاں سورہ رحمان میں آتا ہے احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. یہی چل رہا ہے نا پیٹرن. دوسروں کی کھال جلاؤ گے اللہ تمہاری کھال جلائے گا، کیونکہ ہر چیز میں پتہ ہے اللہ کیا بولتا ہے، مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتے. جو انسان معاف کرتا ہے نا اللہ اس کو بولے گا قیامت والے دن میں تجھے بتاتا ہوں معافی کیا ہوتی ہے میرے بندے، میں الغفار ہوں. تو غفار ہے تو میں الغفار ہوں. تو معاف کرنے والا ہے تو میں الٹیمیٹ درجے کا معاف کرنے والا ہوں. تو فضل کرنے والا میں بتاتا ہوں فضل کیا ہوتا ہے. تو احسان کرنے والا میں بتاتا ہوں احسان کرنے والا کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے. تو کھال جلانے والا ہے میں تجھے بتاتا ہوں کھال جلانا کیا ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ ان کفار مکہ کے لیے آئی آیت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا کرے گا جہنم میں. ہر نان مسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہر کفار کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک کلیئر ہے تمہیں کہ کن کے لیے جو ڈسکرپشن ہے یہ ہر نان مسلم کے لیے نہیں ہے، ہر کفار کے لیے بھی نہیں ہے. اگر تم سمجھو جو اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے، اس طرح کی نیتیں کیری کر رہے تھے، کیا پتا ان کے اوپر بھی ہو جو نیتیں بھی کیری کر رہے تھے، باقی اللہ جانے. ہاں تو سب سے پہلے تو یہ کس ٹائپ کے لیے ہے ڈسکرپشن، یہ اس میں آ گیا. دوسرا کہ یہ جو نان مسلمز ہیں،
ये नॉन मुस्लिम जो कुफ्फार जो हैं जिनके लिए आयतें उतरी हैं, ये किसके ऊपर उतारी जा रही हैं, तुम्हें ये समझना है। हमने समझा किसके लिए उतरी हैं, हाँ? किस टाइप के कुफ्फार के लिए उतरी हैं, ये समझ लिया हमने। अब ये समझना है किसके ऊपर उतर रही हैं। किसके ऊपर उतर रही हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतर रही हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या है? हदीसों में आता है कि जब काले बादल आते थे मदीने में तो आप चक्कर लगा देते, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिक्र में आ जाते थे। किन के लिए? अपने लिए, सहाबियों के लिए। उनको तो पता है अल्लाह का कानून ये है कि अगर अल्लाह का अजाब आता है तो ईमान वालों को कुछ नहीं होता है, अल्लाह उनको बचा लेता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काले बादल आते हैं लोग खुश होते हैं, आप टेंशन में क्यों हो जाते हैं? उन्होंने कहा, ए आयशा, इसमें क्या जमानत है कि इसमें अल्लाह ने अजाब ना भेजा हो। एक आद कौम थी जिनके ऊपर अल्लाह ने ऐसे काले बादलों में ही अजाब भेजा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब उसमें अजाब नहीं निकलता था, बारिश हो जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे हो जाते थे, मुस्कुराहट वापस आ जाती थी, वो बैठ जाते थे। किसकी फिक्र थी? किसकी फिक्र थी? तैफ में क्यों लौटा दिया जिब्रील अमीन को, पहाड़ के फरिश्ते को? क्या पता आगे जाके बदल जाए। किसकी फिक्र थी? क्या उन्हें नहीं पता था इनके साथ क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को बचा रहे थे, उन्हीं को वो बचाने वाले हैं। सूरह कहफ आयत 6, आप अपने आप को इस गम में हलाक कर लेंगे कि सब जहन्नम में जाएंगे। ये सब जो कुफार जो आपको मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जलती हुई रेतों पे बांध रहे हैं, ये आप इस गम में अपने आप को मार लेंगे कि जहन्नमी होंगे, कि इनकी खाले जलाई जाएंगी, आप इस गम में मार डालेंगे अपने आप को। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे ही नहीं, हम मुसलमान समझे ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कहते हैं गुस्ताखे रसूल। अब तुम रसूल को समझे भी हो हैं, और जिस तरह का बिहेवियर करते हो तुम, वो गुस्ताखी होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो गुस्ताखी होती है जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारा एटीट्यूड है नॉन मुस्लिम को लेके, वो गुस्ताखी होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, क्योंकि दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बुरा इंसान समझती है तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से। तुम्हारे मतलब जो तुम समझ रहे हो मैं किस टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जब ही उतरती थी, वो टेंशन में आ जाते थे, क्या करूं मैं इनको बचाने के लिए, ये जो जालिम है, ये जो लोगों को तपती हुई रेतों पे जला रहे हैं, मार रहे हैं, मैं कैसे इनको एक अच्छा दिल वाला इंसान बनाऊं, रहम वाला बनाऊं कि अर्रहमान इनको कबूल कर ले। कि इस कायनात को जिसका सूरज मुसलमान पे भी चमक रहा है, हिंदू पे भी चमक रहा है, ईसाई पे भी चमक रहा है, मैं इनको कैसे बनाऊं कि वो उसी फिलॉसफी में आ जाएं जो हमारे रब का फलसफा है कि बारिश तुम्हारे खेत पे भी हो रही है, तुम्हारे दुश्मन के खेत पे भी हो रही है। मैं इन जालिमों को, हाँ, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये पैगाम लेके उठे थे ना, जालिम इसी को मानने को तैयार नहीं थे। सल्लल्लाहु कहते एक खुदा पे आ जाओ जो ये सिखाता है जिसका सूरज सब पे चमक रहा है, जिसकी बारिश सब पे हो रही है, उसकी एक तौहीद में आ जाओ। मगर हरगिज़ नहीं आएंगे। यही तो सारा मसला था। तौहीद पे भी हम बात करते हैं, मुसलमान आज तौहीद भी नहीं समझे। तौहीद का क्या मतलब? तौहीद का मतलब कि अर्श पे सिर्फ अर्रहमान है, अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, अर्श पे तो अर्रहमान है। हम तौहीद को भी नहीं समझे हुए। देखो मेरे भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंशन होती थी, उनको बचाने की फिक्र होती थी। मैं तुम्हें अपने लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब ये आइसिस, दाइश वगैरह ये जो थे, जब सीरिया में आए थे तो बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थी वहाँ पे। खुद मुसलमान भाग रहे थे वहाँ से सीरिया छोड़ छोड़ के, हाँ, कश्तियों में बैठ बैठ के समुंदर पार कर रहे थे, मेडिटेरेनियन। कश्तियाँ डूब जाती थी, हैं, लोग मर जाते थे। एक तस्वीर आई, जिस तस्वीर को जब मैंने देखा, मुझे आज भी, मैं जब उस तस्वीर को देखता हूँ ना, मुझे कुछ अजीब सा हो जाता है। क्या तस्वीर थी वो? कि एक बच्चा छोटे छोटे वो सैंडल पहना हुआ है, कि मतलब ऐसी टाइप की सैंडल जो बच्चे चलते हैं ना, पुछ पुछ आवाज़ आती है जब वो पैर रखते हैं, छोटे प्यारे से कपड़े पहना हुआ, और रेत में यूँ पड़ा हुआ, और समुद्र की लहरें उसके आ जा रही हैं। मुझे उस तस्वीर ने ऐसे हिट किया था कि मैं 2-3 दिन तक तो मतलब समझो मेरा बिल्कुल ही मूड जो है ना ख़राब था। और मुझे क्या हुआ था, जब भी मैं उसका, जब मैंने उसको देखा था ना, मुझे हिट किया था, मुझे कुछ करना है इस जुल्म को रोकने के लिए। मुझे कुछ करना है। इस बच्चे को, ऐसे बच्चों को, इसकी क्या गलती है इस बच्चे की? हैं, ये तुम कौन सी खिलाफत, कौन सा इस्लाम की तुम बात करते हो? इस बच्चे की क्या गलती है कि इनको भागना पड़ रहा है और ये ऐसे डूब रहे हैं? कौन सा इस्लाम है ये? कौन सा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है शरीयत की और खिलाफत की? हैं कि मुसलमान ही तुमसे भाग रहे हैं। खुलफा राशिद के दौर में नॉन मुस्लिम बुलाते थे, आप आओ आप आओ, हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर हुक्म करो। और यहां पे कि मुसलमान ही भाग रहे हैं तुमसे। ये कौन सी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की?
हैं? तो ये था मुझे काम करना है इसके अगेंस्ट। ऐसे बच्चों को बचाना है, इनकी क्या गलती है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बताया जाता था कि ये जो है इनके साथ ये होगा, उनके दिल पे क्या होती? उनको भी होता कि मुझे बचाना है इन लोगों को, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मुझे इनको बचाना है, ये जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और मैं इनको पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे। आज हम मुसलमानों का एटीट्यूड क्या हो गया? मुसलमान जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं, बहुत अच्छे अच्छे नेक लोग भी हम मुसलमानों में, मैं थोड़ा एक्सट्रीम वालों की बात कर रहा हूँ। वो तो कोई दिखे जहन्नम के ऊपर तरफ भागता हुआ जा रहा है, उल्टा जाके और धक्का दे देंगे। ये एटीट्यूड है लोगों का कि मरना, जल्दी जा जहन्नम में मरदूद। तो ये आयतें उतरी किसके लिए? जिसके दिल पे ये होता कि आदमी खड़ा हो जाए मोटिवेट होके कि आई हैव टू चेंज पीपल्स हार्ट्स, मुझे लोगों के दिल बदलने हैं, नफरतों और दुश्मनियों में से निकाल के अर रहमान की तौहीद में लेके आना है, एक मोहब्बत के खुदा की तौहीद में लेके आना है। कि बच्चियों को रेत में गाड़ देते हैं, जिंदा बच्चियों को, पैदा हुई हुई बच्चियों को, हैं? कौन सा खुदा, कौन सा अल्लाह है तुम्हारा? वो भी अल्लाह का ही वर्ड यूज करते थे। कौन सा अल्लाह है भाई तुम्हारा? अर रहमान जो अल्लाह है ना, उसकी तरफ आ जाओ, क्योंकि अर रहमान तुम्हें सजा देगा। बच्ची पूछेगी तुमसे क़यामत वाले दिन कि मुझे किस क्राइम के लिए मारा गया था, और आप चाहते थे कि उनसे सवाल ना हो, क्योंकि उस दिन जब सवाल होगा ये खत्म, उनको ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। तो उनको बचाना चाहते थे। जहां तक नॉन मुस्लिम की बात, देखो हर नॉन मुस्लिम हम ये नहीं कह सकते कि जहन्नम जा रहे हैं। फतरा की हदीस हमने इस पे वीडियो कर रखा है, यहाँ मुसलमानों का पता ही नहीं फतरा की हदीस क्या है। सूरह इसरा में आयत आती है, अल्लाह कहता है हम उनको सजा नहीं देते जिन तक हमने एक साफ पैगाम पहुंचाने वाला ना पहुंचाया हो, हम उनको सजा नहीं देते। दूसरा फतरा की इसी आयत पे अगर तुम तफसीर देखोगे, एक हदीस मिलेगी तुम्हें जिसको फतरा की हदीस लिखा होगा, बल्कि कई जगह तो टॉपिक हेडिंग ये है कि नो पनिशमेंट टिल क्लियर वार्नर हैज बीन सेंट। कभी भी सजा नहीं मिलेगी जब तक एक क्लियर वार्नर ना पहुंचाओ। ये हेडिंग होगी तफसीर में, तुम देखो, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा ना कर रहा हूं। अब यही पॉइंट नहीं पता मुसलमानों को, हैं? किसकी गलती है? अल्लाह कह रहा है मैं सजा नहीं दूंगा जब तक क्लियर वार्नर ना भेजाऊं, चाहे उनका कोई भी अकीदा चल रहा हो, कुछ चल रहा हो। इनका होगा क्या? ये फतरा की हदीस में आता है। तो इन लोगों का होगा क्या जो नॉन मुस्लिम है पर उनको क्लियर वार्नर नहीं पहुंचाए? इनका होगा क्या? क़यामत के दिन 4 तरीके के लोग आएंगे, एक बूढ़ा, एक बहरा, एक पागल और एक जिसके पास कोई क्लियर वार्नर पहुंचा ही नहीं, क्लियर पैगाम पहुंचाने वाला पहुंचा ही नहीं। बूढ़ा बोलेगा अल्लाह मैं तो इतना बूढ़ा था, आऊँ में लगा था, जब पैगाम पहुंचा मैं समझ नहीं सकता था। बहरा बोलेगा अल्लाह मैं तो बहरा था, मैं क्या सुनता, मैं क्या समझता। पागल बोलेगा अल्लाह बच्चे ऊँट का गोबर फेंक रहे थे मेरे ऊपर उस टाइम, तो जब तेरे पैगाम में मैं क्या समझता। और चौथा बोलेगा अल्लाह मेरे पास कोई पहुंचा ही नहीं क्लियर पैगाम लेके। अल्लाह इनको बोलेगा मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम सब नॉन मुस्लिम जाओ जहन्नम में मरदूद हो। अल्लाह ही नहीं करेगा। हाँ, अल्लाह उनसे वहीं पे आजमाइश लेगा, जो आजमाइश में पास होगा वो बचेगा, वो जन्नती होगा। इस दुनिया में भले नॉन मुस्लिम है, इस आजमाइश के बाद वो फिर जन्नती हो सकता है। हाँ, तो भाई मैं तो दुआ करता हूँ अगर मुझे कोई खबर पहुंचती नहीं कि नॉन मुस्लिम चला गया, मैं कहता हूँ अल्लाह काश ये वही हो जिसको क्लियर मैसेज पहुंचा ही ना हो कभी, और क़यामत के दिन अल्लाह ये तेरा टेस्ट पास कर ले और जन्नती हो जाए। मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह काश इसका मामला ऐसा हो, क्योंकि क्लियर पैगाम पहुंचा कौन रहा है? खुद मुसलमानों के पास आज क्लियर पैगाम नहीं है। ये पता है शराब हराम है, ये नहीं पता कि शैतान नफरत और दुश्मनी चाहता है शराब के जरिए। खूब शैतान के उसमें बैठे हुए, पाले में बैठे हुए नफरत और दुश्मनी की बात करते हैं। खुद शैतान के पाले में बैठे हुए। और वो ये लोग बताएंगे इस्लाम की सही तस्वीर है। इनको तो खुद सही तस्वीर नहीं पता। एक कहावत है, जो खुद सोए हुआ है वो दूसरे सोए हुए को नहीं जगा सकता। जो खुद स्लीपिंग सो रहा है क्या वो दूसरे सोए हुए को जगा सकता है? जिसको खुद इस्लाम का भाई पैगाम क्लियर नहीं हो, दूसरे को क्या बताएगा? तो मैं तो कहता हूं अल्लाह काश फतरा के लोग हों। जब भी मुझे खबर आती है, और अल्लाह इनको एग्जाम पास करवा दीजिए, अल्लाह इनको कुव्वत दीजिए, इनको तौफीक दीजिए क़यामत वाले दिन। मैं तो ये दुआ करता हूँ मेरे भाई। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सब नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अल्हम्दुलिल्लाह बस भाई क्लियर है पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह।